ایران کی اسرائیلی جارحیت کے جواب میں بھرپور کارروائی کا 8واں روز صہیونی ریاست لرز اٹھی۔ آپریشن وعدہ صادق سوم کے 18ویں مرحلے میں صہیونی ریاست کے عسکری مراکز، 2 فضائی اڈوں اور دفاعی صنعتوں پر میزائلوں کی برسات۔ اسرائیل کا دفاعی نظام سجیل اور خیبر میزائلوں کو روکنے میں ناکام۔ تل ابیب اور حیفا میں کئی عمارتیں غزہ کا منظر پیش کرنے لگیں۔ بیسان اور ہولون میں ڈرون حملوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ ہر طرف تباہی ہی تباہی۔ اسرائیلی وزارت دفاع کی عمارت بھی نہ بچ پائی۔ ایرانی حملوں سے 25,040 عمارتوں کو نقصان، 2,623 گاڑیاں تباہ ہوئیں۔ ایران سے اب تک 450 میزائل اور 400 ڈرونز حملے ہوئے، صہیونی حکومت کا اعتراف۔ اسرائیل کی جارحیت میں کمی نہیں آ سکی، 9ویں روز بھی ایران پر پے در پہ حملے۔ اصفہان میں جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی نے جوہری تنصیبات پر حملے کی تصدیق کر دی۔ قم میں اپارٹمنٹ پر میزائل حملے میں قدس فورس کے کمانڈر سعید اعزازی سمیت 2 کمانڈر اور پاسداران انقلاب کے 5 ارکان شہید۔ صہیونی فوج نے لنجان، مبارکہ اور شہریزہ میں شہری آبادی کو ٹارگٹ کیا۔ جنوبی مغربی صوبے خوزستان کے شہر اہواز اور ماہشہر میں دھماکے۔ ایران میں ایئر ڈیفنس سسٹم کو فائل کر دیا گیا۔ اسرائیلی حملوں میں فوجی افسران اور جوہری سائنسدانوں سمیت شہداء کی تعداد 639 ہو گئی، 2,500 زخمی۔ Increasingly confronted with Israel's policies of occupation, destruction and massacre. With the unconditional support of the Western powers, Israel continues to destabilize our region. ایران اور فلسطین سمیت خطے میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف مسلم ممالک نے سر جوڑ لیے۔ OIC اجلاس میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے نیتن یاہو حکومت کو خطے میں امن کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ قرار دے دیا۔ اسرائیل نے یمن، لیبیا اور شام پر جارحیت کے بعد ایران پر حملہ کر دیا۔ ترک عوام ایرانی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ترک صدر کا اجلاس سے خطاب۔ OIC اجلاس میں پاکستان کے نائب وزیر اعظم سمیت 40 فضائی سفارتکار شریک۔ اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی نشستیں ساتھ ساتھ لگائی گئیں۔ چیئرمین OIC کی اسرائیلی جارحیت کی مذمت، مذاکرات کو تنازع کا واحد حل قرار دے دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات۔ پاک ترک قیادت کی اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، صہیونی ریاست کی جارحیت عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دی۔ ایران کے دفاع کے حق کی بھرپور حمایت، کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملے کے خدشات میں اضافہ۔ امریکہ نے 2 B-2 طیارے بحر الکاہل روانہ کر دیے۔ فضا ہی میں ری فیولنگ کے لیے 8 آئل ٹینکرز ہمراہ مہر پرواز۔ B-2 طیاروں سے انتہائی وزنی 35 میٹر گہرائی میں جا کر دھماکہ کرنے والے بنکر بسٹر بام گرانے کی صلاحیت۔ ایران کے فردو جوہری پلانٹ کی تباہی صرف B-2 سے گرائے گئے بنکر بسٹر بام ہی سے ممکن ہے۔ امریکہ نے طیارے ایران پر حملے کے لیے بھیجے یا صرف ڈرانے کے لیے؟ صورتحال غیر واضح۔ امریکی صدر کا ایران کے ساتھ مذاکرات کا اشارہ، دیکھتے ہیں ایران سے بات چیت کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اب تک کی جنگ میں اسرائیل کی کارکردگی ایران سے بہتر رہی، معاملہ بڑھا تو نیتن یاہو کو روکنا مشکل ہو جائے گا۔ ٹرمپ کا انتباہ، تہران پر ایٹم بم کا سامان جمع کرنے کا الزام، ایران کو کلین چٹ دینے پر نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر تلسی گیبرٹ کی رپورٹ غلط قرار دی تھی۔ Nobel Prize for Rwanda, and if you look the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. You could say, the big one is India and Pakistan. I should have gotten it 4 or 5 times. I should get it for the, I would think the Abraham Accords would be a good one too. But what do you They think won't of that give me a idea? Nobel Peace Prize because they only give it to liberals. پاکستان اور بھارت 2 ایٹمی ممالک کے درمیان جنگ بندی کروائی۔ جنگ رکوانے پر نوبیل امن انعام ملنا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کھل کر خواہش کا اظہار کر دیا۔ نوبیل انعام صرف ڈیموکریٹس کو ملتا ہے، ٹرمپ کا اظہار مایوسی۔
जनूबी एशिया को एटमी जंग से बचाने का एतराफ। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद कर दिया। सदर ट्रंप की अमन पसंद क़यादत असल सालिस करार। ट्रंप की सिफारती कोशिशों से पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी आई। इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ सिफारती रवाबित से मुकम्मल जंग का खतरा टाल दिया। ट्रंप की क़यादत ने जनूबी एशिया को एटमी तसादुम से बचाया। पाकिस्तान का एतराफ। हुकूमत पाकिस्तान का मसला कश्मीर के हल में ट्रंप की संजीदगी का खैर मकदम। अमरीकी सदर का किरदार आलमी अमन और मशरिकी वस्ता में इस्तेहकाम के लिए अहम करार। Relations between Russia and Iran. We support Iran in its struggle for its legitimate interests, including the interests with respect to peaceful uses of the atomic energy. ईरान एटम बम नहीं बना रहा। ईरान और रूस को एक जैसे दुश्मन का सामना है। तेहरान के साथ जोहरी ताउन जारी रखेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का इसराइल को जारहाना रवैया तर्क करने का मशवरा। ईरान के पास एटम बम बनाने का सामान मौजूद, लेकिन तेहरान बम नहीं बना रहा। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह ने मुज़ाकरात से जौहरी तनाज़े के हल की उम्मीद जाहिर कर दी। अमरीका और ईरान को बातचीत का अमल बहाल करने पर जोर। ईरानी सदर और फ्रांसीसी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने चाहिए। ईरान को अपने पुरअमन अज़ाइम का सबूत देना होगा। इमैनुअल मैक्रोन का मुवाफ़िक़। ईरानी जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। तवानाई के हसूल का हक रखते हैं। ईरानी सदर का जवाब। पासदारान इनकलाब ने सयाहत की आड़ में जासूसी करने वाले जर्मन शहरी को गिरफ्तार कर लिया। हसास तस्वीर बरामद। ईरानी सिक्योरिटी एजेंसी ने कई अफगान बाशिंदों को भी मोसाद के लिए जासूसी और ड्रोन हमलों के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। ईरान के खतरे को खत्म करने के लिए इसराइलियों को तवील जंग के लिए तैयार रहना होगा। इसराइली फौज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल आयल जमीर का वीडियो पैगाम। दावा किया कि ईरान कई बरस से इसराइल को तबाह करने का मंसूबा बना रहा था। पाकिस्तान की सलामती कौंसिल में ईरान पर इजरायली जारहियत की एक बार फिर मजम्मत। हमले ईरान की खुदमुख्तारी के खिलाफ वर्जी करार। सलामती कौंसिल अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इजरायली जारहियत को रोके और जारह को इसके इकदाम पर जवाबदेह बनाए। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल से मुतालबा। ईरान इसराइल तनाज़ा फैलने से ऐसी आग लगेगी जो कोई काबू नहीं कर सकेगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस ने सलामती काउंसिल के इजलास में वाज़ेह कर दिया। ईरान और इसराइल तनाज़ा जारी रहने से दुनिया बहरान की जानिब बढ़ रही है। ईरान बार बार कह चुका कि वो जौहरी हथियार नहीं बनाना चाहता। तस्लीम करना चाहिए कि एतमाद का फुक़दान है। अमरीका का ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होना इराक पर हमले जैसी संगीन गलती होगा। अमरीका खतरनाक इलाकाई तनाज़े में फंस जाएगा। CIA के साबिक डायरेक्टर लियोन पेनेटा की वार्निंग। ईरान इसराइल जंग के बाइस तफ्तान सरहद पर तिजारत बदस्तूर ताक़तुल का शिकार। सामान से लदे ट्रक्स की तवील कतारें लग गईं। ट्रंप बात पर 2 हफ्ते की बात कहने के आदि। गुज़िश्ता बरसों के दौरान अहम तरीन मामला पर 2 हफ्तों की बात की, एक भी पूरी न की। के आलमी चैंपियन के तौर पर पहचाने जाने के लिए नोबेल इनाम जीतना अहम नहीं। अगर गासिब सहूनी की हिमायत जारी रखेंगे तो तारीख हमेशा अमरीकी सदर और उनके साथियों को चंगेज खान और हिटलर के कटहरे में खड़ा करेगी। ट्रंप को इंसाफ का दोहरा मयार तर्क करके मजलूमों के साथ खड़ा होना चाहिए। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीका सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान। हाफिज नईमुर्रहमान का हुकूमती इक़दाम पर एतराज। ट्रंप ने यूक्रेन जंग खत्म नहीं करवाई। अमरीका इसराइल को तमाम जंगी सहूलियात क्यों फराहम कर रहा है? हाफिज नईमुर्रहमान का सवाल। मैंने कहा था कि ये एक हाइब्रिड हुकूमत है और शायद ये मॉडल जो है आज से पहले इन्वेंट हो गया होता तो हमें बहुत सी जो हादसात हुए हैं हमारी तारीख में वो अवॉइड हो सकते थे। मुल्क में 2.5-3 साल से हाइब्रिड निज़ाम में हुकूमत राइज। पहले ये हो जाता तो मुल्क कई हादसात से बच जाता।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एतराफ़, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान राबते मिसाली और मुल्क के लिए खुशाइंद करार। क्या पीपल्स पार्टी हाइब्रिड निजाम की हामी है? मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चेयरमैन सेनेट से सवाल। किसी शख्स के इनफरादी बयान पर तबसरा मुमकिन नहीं, वज़ीर आज़म ने कुछ कहा तो मुआफ़िक़ दूंगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का जवाब। वज़ीर ख़ज़ाना का सोलर पैनल्स पर टैक्स की मुजवज़ा शरह 18 से कम करके 10% करने का ऐलान। 12 लाख रुपए तक टैक्सों की शरह भी कम करके 1% कर दी। आइंदा माली साल अखराजात में मामूली इजाफे की पेशगोई। पेंशन 20%, तनख्वाह 50% बढ़ाने, सालाना 12 लाख तनख्वाह पर इनकम टैक्स छूट की सिफारिश। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना की वफाकी बजट पर सिफारिशात सामने आ गईं। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की सरबराही में कमेटी का इजलास। ऐवान सदर में बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम के इजरा की तकरीब। प्रोग्राम के जरिए कौम के बच्चों और बच्चियों को हुनरमंद बनाया जाएगा। सदर मुमलिकत ने नौजवानों को हुनरमंद बनाने की कोशिशें काबिल तारीफ करार दे दी। तकरीब में खातून अव्वल आसवा भुट्टो भी शरीक हुई। नून लीग के सदर नवाज शरीफ की लंदन से लाहौर वापसी। साबिक वज़ीर आज़म खुसूसी तैयारी के जरिए अबू धाबी से लाहौर पहुंचे। हसन नवाज और डॉक्टर अदनान भी उनके हमराह वतन वापस आए। लाहौर की सेशन कोर्ट में वज़ीर आज़म के बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर जाने के केस की समाअत। शहबाज शरीफ की वीडियो लिंक पर पेशी। बानी पीटीआई के वकील की वज़ीर आज़म पर जरा। समाअत 23 जून तक मुलतवी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई से मुताल्लिक केस में पीटीआई वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली। लोग कोट लखपत जेल में एटीसी के जज ने महफूज शुदा फैसला सुना दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी की मुखालफत। 19 जून के इजलास से पहले का लिखा खत सामने आ गया। पेशगी बता दिया था 19 जून के इजलास के लिए पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं। तवक्को थी अदम दस्तयाबी पर इजलास मौखर किया जाएगा। खत का मतन। आप बैठ जाएं। ऑलरेडी रूल्स रिलैक्स किए जा चुके हैं। निसार साहब को रेजोल्यूशन मूव करने दें। वो रेजोल्यूशन पढ़ रहे हैं। सिंध असेंबली इजलास में बेनज़ीर भुट्टो को खराज अकीदत के लिए करारदाद पेश। ऑपोजिशन का हंगामा। बजट के दौरान कोई करारदाद पेश नहीं हो सकती। ऑपोजिशन अरकान का मुआफ़िक़। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के बिल्स पर फिर से बढ़ने का वक्त। वज़ीर आज़म पैकेज के तहत बिजली की कीमत में 4 रुपए 51 पैसे फी यूनिट रिलीफ की मुद्दत रवा माह खत्म हो जाएगी। माली साल की तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट में 1 रुपया 55 पैसे कमी का इत्तलाक जुलाई में जारी रहेगा। पंजाब हुकूमत और एडीबी में मुख्तलिफ मनसूबों में मालियाती ताउन पर इत्तेफाक। ज़राअत में जदीद मशीनरी के इस्तेमाल, जदीद ट्रांसपोर्टेशन के मनसूबे शामिल। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की ऑब्जर्वेटरी के क़याम के लिए माली ताउन होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर को एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड से खातिरख्वाह हिस्सा न मिलने पर विफाक से एहतजाज। विफाकी वज़ीर तिजारत को खत लिखकर फंड्स मुख्तस करने की अपील कर दी। 10 साल के दौरान फंड के इस्तेमाल और तफसीलात बताने का मुतालबा। मुल्क से पोलियो का खात्मा मुमकिन नहीं हो सका। 7 अजला के नमूनों में एक बार फिर पोलियो वायरस की तस्दीक। गवादर, क्वेटा, जनूबी वज़ीरिस्तान, रावलपिंडी, लाड़काना और मीरपुर खास शामिल। पश्चिम और लाहौर से हासिल करदा सीरीज नमूने पोलियो फ्री करार। वज़ीर मरियम औरंगजेब का जानुल हस्पताल का भेस बदल कर दौरा। हस्पताल की इमरजेंसी और मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। मरियम औरंगजेब ने मुख्तलिफ वार्ड्स में ज़ेरे इलाज मरीजों के लवाहिकीन से भी बातचीत की। क्वेटा के इलाके जंगल पीर अलीज़ई में सीटीडी की कार्रवाई। 5 दहशतगर्द हलाक। असलहा, गोला बारूद और हसास मकामात के नक्शे बरामद। डेरा इस्माइल खान में पुलिस पर दहशतगर्दों का हमला। जवाबी कार्रवाई में कलदम टीटीपी गंडापुर ग्रुप का दहशतगर्द हलाक। 2 दहशतगर्द जख्मी। असलहा, गोला बारूद बरामद।
स्वाबी के थाना IDS की हुदूद में होटल पर फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। दोनों एहलकार खाना खा रहे थे। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। वजीर आजम और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहदा को खराज अकीदत। कराची के इलाके क्लिफ्टन में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 पिस्तौलें और 1 मोटरसाइकिल बरामद। सीवीयू और इब्राहिम हैदरी पर भी मुबैना मुकाबलों में 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में पकड़े गए, असलहा बरामद कर लिया गया। कराची एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर मुबैना रिश्वत लेते हुए पुलिस एहलकार की वीडियो सामने आ गई। रिश्तेदार को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था, बिला वजह रोका गया। एहलकार ने पैसे लेकर जाने दिया, शहरी का इल्जाम। मुजफ्फरगढ़ के थाना सदर में मेडिकल के लिए आई खातून से निजी एहलकार की मुबैना ज्यादती, मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। DPO ने सब इंस्पेक्टर और ASI को मुअत्तल कर दिया। अदालत ने कमसिन बच्ची से ज्यादती की कोशिश साबित होने पर मुजरिम डॉक्टर को उम्र कैद की सजा सुना दी। 1 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। फैसलाबाद में सौतेली बेटी से ज्यादती की कोशिश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुल्तान फैसलाबाद में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट से मुबैना मुकाबला, पुलिस कांस्टेबल समेत 3 कत्ल में मुलव्विस मुलजिम हलाक। रहीम यार खान में मुबैना पुलिस में मुकाबले में 1 डाकू मारा गया। खानेवाल में सड़क किनारे दरख्तों से लकड़ियां काटने पर बाअसर अफराद का शहरी पर तशद्दुद, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। KPT मौड़ीपुर रोड पर 172 स्क्वायर मीटर अराजी वागुजार करा ली गई। गैर कानूनी तामीरात को मुनहदम कर दिया गया। हैदराबाद के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में 10 रोज से बिजली बंद। गर्मी और बिजली बंदिश के सताए शहरियों का दूसरे रोज भी एहतजाज जारी। मुश्तिल मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सड़क बंद कर दी। DG रेंजर सिंध की मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में तमाम मकातिब फिक्र के जय्यद उलमा और अकाबरीन से मुलाकात। मुहर्रमुल हराम में अमन अमान को यकीनी बनाने और बाहमी अहम आहंगी को फरोग देने पर तबादला ख्याल। उलमा कराम ने इस मौके पर मुहर्रमुल हराम में क़याम अमन के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत और ताउन की यकीन दहानी कराई। पंजाब में 1 से 10 मुहर्रमुल हराम तक दफा 144 का नफाज रहेगा। नोटिफिकेशन जारी। जुलूस के रास्तों पर वाक़ई मकानात या दीगर इमारतों की छतों पर मोर्चों की तामीर, पत्थर, ईंटें, बोतलें या कचरा जमा करने पर पाबंदी आयद। जुलूस के दौरान इमारतों पर बतौर तमाशाई मौजूदगी भी ममनुआ करार। महकमा एंटी करप्शन की तंजीम में 9 कर दी गई चेयरमैन का ओहदा खत्म करके ग्रेड 19 या 22 की डायरेक्टर जनरल की पोस्ट तख्लीक। IT ऑफिसर की भर्ती सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से होगी। अकाउंट्स असिस्टेंट और IT असिस्टेंट की बराह रास्त भर्ती होगी। असिस्टेंट से लेकर सैनिटरी वर्कर्स तक 294 आसामियां खत्म। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 17 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए। 13 जून को खत्म होने वाले हफ्ते में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़खायर में 46 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ। कराची में टर्टल बीच के मकाम पर बीच रिजॉर्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। पाकिस्तानियों को थाईलैंड, मलेशिया और दुबई जाने की जरूरत नहीं। मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। बीरवाला में रात की बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। कुमरात में रैला बच्ची को बहा ले गया। 3 राब्ता पुल बह गए, 4 मकानात और 1 पावर हाउस तबाह। इस्लामाबाद में अलहल सुबह बरसात। कराची का मौसम 2 रोज से अबर आलूद। शहर में कहीं कहीं बूंदाबांदी। चीन के जुनूबी इलाकों में मूसलाधार बारिशों से तबाही। दरिया का पानी बिखर कर आबादियों में दाखिल हो गया। 78 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। चीनी महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। गजा पर इस्राइली हमले रुक नहीं सके। अंधाधुंध बमबारी से 82 फलस्तीनी शहीद। इम्तदाद के मुंतजिर 34 अफराद शामिल। अमरीका में गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ क्रैकडाउन के खिलाफ कैलिफोर्निया में एहतजाज। मुश्तइल मुजाहिरीन की एहलकारों से झड़पें। पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की आज 72वीं सालगिरह मनाई जा रही है। मुख्तलिफ शहरों में केक काटने की तकारीब होंगी। शहीद बेनजीर भुट्टो अवाम के लिए हमेशा हौसले, जमहूरियत और उम्मीद की अलामत हैं।
शहीद बेनजीर भुट्टो आवाम से जिस्मानी तौर पर बिछड़ चुकी हैं, लेकिन उनके नजरियात और अफकार हमेशा जिंदा रहेंगे। बिलावल भुट्टो का वालिदा का मिशन आगे बढ़ाने का आज़्म। न्यूजीलैंड ने FIH हॉकी नेशंस कप का टाइटल मुसलसल दूसरी मरतबा जीत लिया। फाइनल में डिफाई चैंपियन न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 6-2 से शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। फलों के बादशाह के लाहौर में जलवे। मैंगो फेस्टिवल में अनवाओ अक़साम के आम तवज्जो का मरकज। फेस्टिवल में तलबा के लिए मुसफ़्फ़री का एहतमाम। बच्चों ने मुनफरिद पेंटिंग्स भी बनाई।